ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਮਨੀਕ ਭਾਟੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਰਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਰਿਤਿਕ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਅਵਸਥੀ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਲਲਿਤ ਜੀ, ਰਜੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵਾਈਸਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਨਵਾਈਸਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਸੰਸਦ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸੁਬਰਤ ਪਾਠਕ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਂਗ ਵਾਲੇ, ਨਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵਟਸਐਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਿਤ ਜੀ ਜਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਦ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ? ਸਰ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਨਿਟਿੰਗ ਸੀ, ਡਾਈਂਗ ਸੀ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵਾਈਸਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि कोई डाटा रजिस्ट्री दो। मेरा नाम राजेश बंसल, कंपनी का नाम मीडिया इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेरा प्रोसेस हाउस है। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक इशू को जो प्रॉप अप करने के लिए कि डाइंग इंडस्ट्री, फैब्रिक इंडस्ट्री, स्पिनिंग सारे परेशानी में है। ये इशू लुधियाना का नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक फैली हुई इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में, राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे तमिलनाडु, उधर से आंध्रा के बाद MP और इधर वेस्ट बंगाल होते सारा इंडिया में ये टेक्सटाइल घुसी हुई है। तो ये इशू खाली लुधियाना का नहीं है, पैन इंडिया लेवल इससे परेशान है। आज की डेट में मोटा मोटी 5 करोड़ लोग एक डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं टेक्सटाइल्स में और 4.5 करोड़ का डाटा कहता है ये इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। इसमें फार्मर्स का लिंक नहीं है, अभी फार्मर्स का डाटा इसमें नहीं है। तो 10 करोड़ लोगों की जो रोटी चल रही है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री नहीं है। बट ये चाइना के इशू ने सबको परेशान करा हुआ है। चाइना से फैब्रिक इतना ज़्यादा आ रहा है और आने से परेशानी नहीं है, जिस तरह से आ रहा है वो एक इशू है। GDP का हम 2-2.5% हम टेक्सटाइल में लेते हैं और फॉरेन अर्निंग हमारी 12 से 13% है टेक्सटाइल्स की। खाली टेक्सटाइल्स में बात करें जो गारमेंट एक्सपोर्ट और फैब्रिक एक्सपोर्ट की है। अब इतना बड़ा सेक्टर हमारा हिट हो रहा है और हमें गवर्नमेंट को एक अपील है कि इस सेक्टर को देखा जाए थोड़ा सा। डाटा रजनीश जी बताएंगे कैसे अपने कर रहे हैं, किस तरह से आ रहा है। बट जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट का डाटा अबाउट 200% का बढ़ गया पिछले 4 साल में। आज की डेट में 890 टन मीट्रिक टन पर डे का डाटा आ रहा है हमारे पास कि इम्पोर्ट ऑन द फैब्रिक है। सर ये बताना आप कहाँ किस मंत्री को या किन किन को मिल चुके हो? मैं वो बता देता हूँ। मोटा मोटी डाटा कहता है कि 890 टन पर डे हमारे पास फैब्रिक आ रहा है और ये 890 टन का मतलब है कि पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है।
क्वांटिटी हो गई, दूसरी वैल्यू हो गई। आज $1.5 से $2.25 के बीच में इसकी वैल्यू आती है फैब्रिक की। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई सबसे सस्ता प्रोडक्ट है दैट इज़ पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर, उसका है वैल्यू $1 के आसपास। अब $1 की चीज़ से $2.25 की चीज़ बन के कैसे आ सकती है, जिसमें पहले स्पिनिंग भी होनी है, डाइंग भी होनी है, निटिंग भी होनी है, उसके फिनिशिंग भी होनी है, सब कुछ होनी है। इसे शेयर केस की ये अंडर वैल्यू करके आ रहा है। कितनी अंडर वैल्यू? एवरेज हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए $4.5-5 के बीच में होनी चाहिए। उसके अगेंस्ट हमारा 1.6 का डाटा इसमें मैनिपुलेट होता है, मानते $1.5 से $2.25 के बीच में आ रहा है ये। अब इससे होने से उसको ड्यूटी पे कितना फ़र्क पड़ता है, गवर्नमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। हमारे एस्टिमेट के हिसाब से 7,000 करोड़ रुपए पर ईयर का लॉस आ रहा है एक्सचेकर को, जिसमें आपकी कस्टम ड्यूटी आ गई, जिसमें कस्टम ड्यूटी आ गई पहली बात, जिसमें पहला हेड हो गया कस्टम ड्यूटी का, दूसरा हेड हो गया आपका जीएसटी का, तीसरा इनकम टैक्स का। 7,000 करोड़ के आसपास का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दी हुई है। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है सर इसके? इंपोर्ट ड्यूटी 10 से 20% है, अलग अलग कैटेगरी के, चल अलग अलग एसेंस कोड की 10 से 20%। और इसमें सबसे बड़ी एम्बिग्यूटी हमें जो फेस हो रही है कि इसके ऊपर कोई मिनिमम कैप वैल्यू नहीं है। आज धागे से 2 तरह के फैब्रिक बनते हैं, वोवन और निट्स। दोनों का रॉ मटेरियल सेम है और आगे फिनिशिंग का प्रोसेस सेम है, खाली बीच का प्रोसेस है कपड़े को शेप देने का, वो डिफरेंट है। बट हमारे पर वोवन सेक्टर पे हमारे पर मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी है। मिनिमम ड्यूटी कस्टम्स ने दी हुई है आर्टिकल नंबर नोटिफिकेशन नंबर 82 से 82/2017 कस्टम ड्यूटी कहती है देयर इज अ मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द वोवन फैब्रिक। ये रेंज करती है जैसे ₹23-24 पर स्क्वायर मीटर से लेकर ₹35 स्क्वायर मीटर तक, और 115 से लेकर ₹200 केजी के हिसाब से। अगर ये वोवन फैब्रिक पे इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है तो व्हाई नॉट ऑन द नेटेड फैब्रिक। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? नेटिंग पे अभी कोई कैप वैल्यू नहीं है। 10 से 20% MIP नॉर्मल 10 to 20%, बट मिनिमम इंपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। जो हमें 123 की जगह पे बेसिकली गवर्नमेंट को सिर्फ ₹20 मिल रहे हैं। हमें इसका इंपोर्ट फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर ये ड्यूटी इम्प्लीमेंट होती है ₹150, ₹125, अभी उसके अगेंस्ट क्या जा रही है? अगर ₹100 में अगर फैब्रिक इंपोर्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसके गवर्नमेंट को 15 से 20 रुपये मिल रहे हैं। 15 से 20 रुपये, एक तो उधर कॉस्ट कम हो रही है, अननेसेसरी कॉस्ट हो रही है, दूसरा उसमें पैरेलल इकॉनमी खड़ी हो रही है। आप सबको याद होगा 2016 का दिसंबर का महीना, 2017 का जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, हम लोगों ने कितनी परेशानी ली थी डिमोनेटाइजेशन के बाद। उसका एक ही टारगेट था कि अपने को सिस्टम में लाना है अपने को पैसे को। अब ये सारी चीज़ें पैरेलल इकोनॉमी जनरेट कर रही हैं, गवर्नमेंट को नुकसान कर रही हैं, हम सबका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, और फार्मर्स को परेशानी हो रही है, वो अलग है सबसे ज़्यादा। सर आपका गवर्नमेंट को क्या सजेशन है, कैसे हो सकता है, हल क्या है इसका? पहला हल तो ये कि कम से कम जो चीज़ आ रही है वो एक एक्चुअल वैल्यू पे आनी चाहिए। देयर कुड बी आर्गूमेंट कि भाई चाइना से कोई फैब्रिक आ रहा है तो आपको क्या परेशानी है, वेरी ट्रू, बट उसका तरीका तो एक होना चाहिए ना, तरीका तो सही होना चाहिए ना। जो चीज़ 400 रुपये नीचे बन ही नहीं सकती, वो 100 रुपये में कैसे आ सकती है? और बिक्री है बाजार में, बिक्री है, इसका मतलब 300 रुपये इधर उधर घूम रहा है, 300 रुपये कैश वैल्यू के पैरेलल इकोनॉमी में चल रहा है, हवाला से जा रहा है। गवर्नमेंट को भी चूना लग रहा होगा। डेफिनेटली 7,000 करोड़ का डाटा मोटा मोटी एक एसोसिएशन ने दिया था, और ये खाली हमारी एसोसिएशन नहीं है, ऑल पैन इंडिया लेवल की एसोसिएशन इससे परेशान है। सूरत, हाँ जी, हाँ ईयरली 7,000 करोड़ पर एनम का एक प्रेजेंटेशन थी ऑल इंडिया एसोसिएशन की तरफ से टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पब्लिक न्यूज़।